को अपलोड करना है। अच्छा, so assalamu alaikum everyone guys. We are supposed to do IGCSE paper 4 to October November 2025, 100 mark calculator based paper. So for O levels this is going to be paper 2. ठीक है? अच्छा, so the paper itself is not really difficult, decent है जरा। इसमें जो है ना easy questions को फटाफट mark करते हैं। In the meantime, all those who have completed this paper already, I'd want you to directly write the question number that you'd want me to solve first, जिसमें आपको difficulty है, and then अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं जिन्होंने पेपर पूरा solve कर लिया है, ठीक है? So in the meantime, let's mark the easier questions. This is one of the easy questions, ठीक है? Now इसके अलावा this question should be easy. This is a big statement, but then we can say it's a very easy question. अगर पढ़ लिया गलती से तो इसको भी solve कर लो. Then we move on. This is for IGCSE, इसको red से mark करेंगे. IGCSE वालों ने attempt करना है, not for O levels. We'll move on. Transformations, if you're good with it, do it. If not, skip it. Kinematics, skip it for now. And then we're going to do what we are going to do. Number sequence is very easy. Number sequences के अलावा और हम क्या करेंगे? Apart from number sequences, we can do graph of functions, circle properties. This is very easy. You can try it in the first attempt, and then move on. This you can try in the first attempt as well. Then we have vectors and I think simultaneous. It's up to you. ये थोड़ी सी मुश्किल वाली simultaneous है, so stay with me. We'll try this as well. And maybe this, ठीक है? So these are those questions जो कि आप first go में probably attempt कर सकते होंगे, ठीक है? So any मोहम्मद नवीद आपने बताया नहीं, is there any specific question that you'd want me to solve first? कोई ऐसे guys अगर जिन्होंने पूरा पेपर solve कर लिया so they can write the question number that they would want me to solve first. Otherwise मैं पूरा पेपर जैसे हम करते हैं उसको उस हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है? No? चलो, मतलब सॉल्व ही नहीं किया किसी ने। मोहम्मद नवीद कह रहे थे किया, बट लेट्स सी। अच्छा, हमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये कह रहा है हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन 19। आपने पूरा पेपर सॉल्व किया ईशा? तो 19 पे आते हैं। इजी क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वंस टुडे। 19 ट्राई करते हैं। चलो, क्वेश्चन 19। व्हाट इज 19? साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है? व्हाट डज इट से? गाइस इस पार्ट को समझो जरा, ये ओ लेवल्स में नहीं पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। आईजीसीएसई वालों को मैंने देखा है भी कुछ पेपर्स में काफी तंग करे एग्जामिनर। ओ लेवल्स वाले भी देख लो, दिस इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। But what this says is basically solve the simultaneous equation where you must show all your working and give your answer correct to two decimal places। 6 नंबर का सवाल है। चलो मैं करा देता हूँ, सारे करा देता हूँ। क्वेरीज आप लोग बताएंगे, हम वो करेंगे। सो बेटा हमारे पास अगर आप देखोगे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दीज आर टू इक्वेशंस। हाउ डू वी नो वी आर सपोज्ड टू डू साइमल्टेनियस? एक तो एग्जामिनर ने बताया, बट वी आल्सो हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पे y और x टू नंबर ऑफ अननोन्स, again y and x two number of unknowns. When you have two number of unknowns in an equation, you cannot solve it individually, hence you need to apply simultaneous का method. Now the problem is कि आपके पास हमने O levels के लिए, maybe IGCSE में भी we might have not done any examples where there is a quadratic equation involved for the case of simultaneous equations. तो बच्चे जब ऐसा केस होगा ना, तो keep in mind you cannot perform can't perform elimination, ठीक है? आप elimination नहीं कर सकते, although elimination is very easy but you can't perform, ठीक है? So अगर elimination नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। कीप इन माइंड जब एलिमिनेशन का रास्ता ही बंद हो गया, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बेटा क्या ऑलरेडी y के टर्म्स में सब्जेक्ट बना हुआ है? यस और नो? बना हुआ है y के टर्म्स में? यस, y के टर्म में सब्जेक्ट बना हुआ है, जस्ट रिप्लेस कर दो। अनलाइकली है बट देख लो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कर सकते हो। बस एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसके बाद इजी है, काफी कर सकते हो, ठीक है? इसका आगे वाला पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जो इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। बेटा अगर मैं इन सारे नंबर्स को एक जगह लेके जाऊं, सो x और x x स्क्वायर, सॉरी दिस इज x स्क्वायर, सो दिस x वुड कम ऑन दैट साइड, ठीक है? यहाँ पे कहीं आ जाएगा और 5 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस वुड बिकम 3x² माइनस 7x प्लस 2x, एंड फिर क्या होगा हमारे पास? माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन जाएगी? 3x² माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस ईशा? ये कैसी इक्वेशन बनी मेरे पास? व्हाट इक्वेशन?
क्वाड्रेटिक। बेटा क्या अब हम ओ लेवल्स वाले भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते? छोटा सा सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था एक बार, क्या अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? यस और नो, जल्दी से बताओ, कर सकते हैं? सो अब क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? विच मेथड विल यू कंसीडर? एंड कंसीडरिंग दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि कैलकुलेटर बेस्ड पेपर है और 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर करना है, सो अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x is equals to minus b plus minus root of b square minus of 4ac upon of 2a। I won't waste much time on this। जल्दी से मुझे इसकी दो वैल्यूज ऑफ x बता दो, क्या x की वैल्यूज आ रही हैं? करते करते बस जल्दी से बताओ क्या x की वैल्यूज आ रही हैं। What are the two values of x that we do? कैलकुलेटर यूज कर लो इसके लिए गाइस, आई एम श्योर यू नो हाउ टू डू कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चीज को कैलकुलेटर में प्लग इन करें, टेल मी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, या मैं यहां से देख लूं बल्कि। दिस इज व्हाट क्वेश्चन 19, 2.92 एंड चलो 2.92 और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आई? -1.25। बेटा जब एक्स की वैल्यूज आ गई दो, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई बताने हैं, ठीक है? इसके वाई कैसे निकालोगे? जस्ट प्लग इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन। डू वी नॉट हैव टू इक्वेशंस? तो इजी वाली पिक कर लो, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है? y is equals to 5 minus 2x and plug in these values बारी बारी कर लोगे, plug in बारी बारी to find their corresponding y values, yes or no? Yes sir। ठीक है, वेरी इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। इसके बाद मुझे किसी ने कहा क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 21 एंड फिर हम करेंगे क्वेश्चन 18 अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है? क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है जरा देखो। क्वेश्चन 21 says y is inversely proportional to x plus 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा कहना है से दिस मींस y प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 1 ओवर x plus 2 का होल स्क्वायर। व्हेन यू वांट टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी, सो दिस बिकम्स y is equals to k over x plus 2 whole square। Any difficulty over here? Any problem so far? Any problem with this part? ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है? कहता है y इज प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा? y प्रोपोर्शनल टू x, सो दिस वुड बिकम y इज इक्वल्स टू kx। एनी डिफिकल्टी? कोई मसला यहाँ पे? एनी प्रॉब्लम? नो। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है व्हेन y is 8 x is 3.5। बेटा y is 8 x is 3.5, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ k? जल्दी से देखो कैसे होगा। this would become 8 is equal to k over 3.5 plus 2 का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज गोइंग टू बी 8 into 3 5.5 का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या व्हाट इज द वैल्यू फॉर k? अच्छा यहाँ पे जो है ना, बल्कि एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमने एक छोटी सी गलती की, मैं जरा बताता हूँ क्या है। 5.5 का स्क्वायर, दिस इज w कह रहा है, w इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है? ठीक है, सही फरमाया, करेक्ट करता हूँ करेक्ट उसको। सो दिस इज k is 242, k is what? k is 242, गुड कैच, 242, ठीक है? सो मैं इसको क्या कहूंगा? दिस विल बिकम y is equal to 242 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है? x प्लस 2 होल स्क्वायर। अच्छा इसको जरा देखिएगा, हमने मिसरीड किया इसको, दिस इज w इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होगा? इसको जरा हम दोबारा से लिखेंगे, w प्रोपोर्शनैलिटी का साइन x, ठीक है? एंड दूसरी चीज, नाउ बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट इक्वेशंस, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है। सो गाइस वुड इट बी फीजिबल टू यूज k अगेन? क्या दोबारा से k यूज करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? विल दीस k बी इक्वल? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली नो। सो इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट के, क्योंकि आपके एक ही बार दो प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन आ गए, सो के के बजाय कोई और वैल्यू यूज कर लो, जस्ट यूज y इज इक्वल्स टू cx, ठीक है? इस बार c आपने कांस्टेंट ले लिया, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, बट मेक श्योर यू डोंट यूज k अगेन बिकॉज द आंसर इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर दिस केस, ठीक है? सो इस चीज का खास ख्याल रखना, यूज एनी अल्फाबेट which is going to be constant and is going to act like k, but it's not going to be k itself, कोई और अल्फाबेट होगा। यहाँ पे w की वैल्यू भी गिवन है, 90 की वैल्यू भी गिवन है, so you're going to say 15 is equals to c times of 90, और बेटा c की वैल्यू क्या आएगी? 15 over 90, और ये क्या हो जाएगा? 1 over 6, and the value for c is what? c की वैल्यू आ गई 1 over 6, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? w is equals to 1 over 6 times of x। any problem so far? do I have two equations? क्या दो इक्वेशन? yes. ठीक है, अब इसके बाद क्या फरमा रहे एग्जामिनर? इसके बाद फरमा रहा है एग्जामिनर राय फाइंड y इन टर्म्स ऑफ w, ठीक है? तो y मेरे पास क्या था? y यहाँ पे था, जो किसके बराबर था? y इज इक्वल टू 242 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर। बट बेटा मुझे y लिखना था इन टर्म्स ऑफ w। डू आई नीड दिस x? क्या ये x की जरूरत है? No. W के जरूरत, उसमें लैंग्वेज बता। So how do I get rid of x? Do I have any other equation where I can remove this from?
W. हाँ, तो बेटा x किसके बराबर होगा? कहना है से x इज इक्वल टू व्हाट? 6w फ्रॉम दिस केस। यस, तो 6w हो जाएगा बेटा, प्लग इन 6w ओवर हियर, सो मेरे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 242 ओवर ब्रैकेट 6w प्लस 2 का स्क्वायर। इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? 4 मार्क्स, इजी। ठीक है, एनी डिफिकल्टी? ऑल गुड। अच्छा, इन द मीन टाइम समवन सेड क्वेश्चन, कौन सा कहा इन्होंने? आहत, कौन सा क्वेश्चन कहा था इन्होंने? नहीं समझ, 18 कहा था, मैं समझाता हूँ। 18 और 6 दोनों करते हैं, पहले 18 फिर 6 पे आता है। आई डिड नॉट गेट इट। बेटा जरा पढ़ो सवाल, जिमल क्या कह रहा है बच्चे? सवाल कह रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 2। तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? माइक खोल लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर, ये समझ आ गया। तो बेटा आपने वैल्यूज प्लग इन कर ली, ठीक है, आपने y की भी प्लग इन की, x की भी प्लग इन की, यू फाउंड आउट दिस इक्वेशन। क्या कोई यहाँ पे कोई डिफिकल्टी व्हेन यू फाउंड आउट द वैल्यू फॉर k? नो, ऑल गुड। अच्छा, अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है w के लिए। w was proportional to x बच्चे, so w is proportional to x, where you will not use k again because you've already used k as a constant once for this equation. या तो आप k1 और k2 कर लो, that is fine, but do not just write k alone for both the cases or write a different alphabet. यहाँ पे k यूज किया तो यहाँ पे c कर लो, या कोई भी alphabet यूज कर लो, but use a different constant, maybe k1 k2, maybe a b c, any other alphabet. So y is proportional to x, remove the proportionality का sign, add a constant, you name it c, and you find the value of c by plugging in w and x. So बेटा आपके पास c की वैल्यू आई 1/6, जहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी w is equals to 1/6x. Any difficulty so far? नो। सवाल क्या कहते हैं? खत्म नहीं हुआ। सवाल कहते हैं फाइंड w in terms of और y in terms of w बेटा। सो y हमारे पास ऑलरेडी सब्जेक्ट के फॉर्म में था, बट क्या वो in terms of w था या in terms of x था? इन टर्म्स ऑफ एक्स। So basically I need to get rid of this x. तो बेटा इस x से मैं कैसे जान छुड़ा सकता हूँ? By basically substituting value of x, right? x तभी गायब होगा ना कि अगर मैं इस x की जगह कुछ और वैल्यू यूज करूँ। I wanted a w instead of this. So do I have any other equation which is w and x के फॉर्म में? This equation. यस। So can I make x the subject from here which is 6w? तो x 6w के बराबर है, यहाँ पे मैं 6w लिखूंगा तो मेरे पास x गायब हो जाएंगे, and I have y in terms of w over here. Is this clear now? ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है? क्वेश्चन 18 वेक्टर्स है, ठीक है। व्हाट डज इट से? इट सेज फाइंड, अच्छा, इन द डायग्राम OA इज पैरेलल टू CB। OA हमारे पास क्या है? OA जो है हमारे पास पैरेलल है CB के, ठीक है। सो OA एंड CB कहाँ गया? O एंड CB, दीज आर पैरेलल, ठीक है। फिर कहता है OA is अगर 4, so CB is going to be 3 times, ठीक है। So this is the ratio 4:3 for OA and CB. Now it further says that OA is equivalent to A and OB is equivalent to B. Find AB in terms of find AB in terms of A and B. So मुझे बताओ AB के लिए क्या पाथ सेलेक्ट करोगे अब्दुल अहद? What is the path that you're going to select for the case of AB? AO plus OB. ठीक है, so AB मेरे पास होगा, that is going to be AO plus OB. So मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी AO की बच्चे? The value for AO is going to be, that is going to be, जल्दी से बताओ क्या होगी वैल्यू? -A plus B, -A plus B, which is correct. ठीक है, so this is what? -A plus of B, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, सो इट्स -A plus B। अब इसके बाद क्या कहता है? अब वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, ए भी फाइंड करना। फिर कहता है m इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। m क्या फाइंड करने हैं हमने बच्चे? हमें m इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ OC ये रहा। सो m हमारे पास कहीं यहाँ पे लाई करता होगा मिडिल पे, व्हिच मींस इट्स गोइंग टू बी हाफ ऑफ एग्जैक्टली द वेक्टर OC। अब कहता है फाइंड am फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड ऑफ b। सो बेटा am मेरे पास कौन सा वेक्टर बनेगा? कैन आई से इट इज दिस वेक्टर व्हिच आई एम सपोज्ड टू फाइंड, ठीक है। सो इस वेक्टर में मुझे पास अगर मुझे am फाइंड करना है, जरा ये बताओ कि am के लिए क्या पाथ सेलेक्ट करोगे? व्हिच पाथ विल यू सेलेक्ट फॉर am? AB plus BC plus BM. प्लस OM। बेटा AB plus BC plus CM, दैट इज करेक्ट, बट कितने वेक्टर्स ऐड कर रहे हो बच्चे? काम को आसान करो ना अपने लिए। कितने वेक्टर्स ऐड करोगे?
3 vectors. So isn't it easier that I add AO plus OM just like Isha mentioned? Isn't that much easier? Now what you did is correct. Yes. जो आपने किया सही है, आंसर भी सही आ जाएगा कंसिडरिंग यू डू एवरी वर्किंग करेक्टली, बट देन यू आर एडिंग 3 वेक्टर्स एंड प्रोबेबली वो भी फ्रैक्शंस में एडिशन होगी, सो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, डू आई नो द वैल्यू ऑफ एओ? एओ की वैल्यू पता है? दैट इज अगेन नेगेटिव ए। नेगेटिव ए, ठीक है। नेगेटिव ए के बाद व्हाट एल्स डू वी हैव? नेगेटिव ए के बाद हमारे पास अब हमें फाइंड करना है ओएम। ओएम कैसे आएगा? व्हाट इज ओएम? डू वी नो अबाउट ओएम? OB plus BC will get at OC. Guys, who is this? Is someone using his microphone? कोई माइक यूज कर रहा था अभी? नो? अच्छा, नो वन इज यूजिंग माइक्रोफोन, चलो। अच्छा चलो सही है। सर ओनली कंफ्यूजन इज वी विल यूज ए और ए। व्हाट डू यू मीन? अब्दुल्लाद में आपकी बात, अच्छा ठीक है, आपका माइक तो वो तो चलो मुझे आवाज आ रही है, इट्स फाइन। अब्दुल्लाद क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। सर यू इसमें कैन कैपिटल ए वाला यूज करें? फॉर व्हाट? ओ ए प्लस ओ एम वाला। ओ ए प्लस ओ एम। ये देखो ना बेटा, आपने वेक्टर, आपने पहले डायरेक्शन फाइंड की, क्या है वो ए ओ के टर्म्स में। जब आप डायरेक्शन लिखते हो कैपिटल लिखते हो, अब उस डायरेक्शन की वैल्यू क्या थी? दैट वाज नेगेटिव ऑफ ए इन स्मॉल, सो आप ये वाली वैल्यू यूज करोगे। डू यू गेट दिस पार्ट? ठीक है। अच्छा, फिर आपने ओ एम फाइंड करना है। ओ एम क्या था शजीन? यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी। ओ एम क्या था? दैट वाज Half of OC. हाफ ऑफ ओसी, शाबाश। सो अब ओसी कैसे फाइंड होगा? दैट इज द क्वेश्चन। अब ओसी Sir, फाइंड OB कर, plus BC to find OC. ओसी के लिए ओबी प्लस बीसी, दैट इज करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लस हमने कहा हाफ ऑफ ओसी, सो दैट मींस ओसी ओवर 2। गाइस, एनी डिफिकल्टी सो फार? एनी डिफिकल्टी सो फार यहां तक बताओ। अच्छा, सो अब ओसी कैसे फाइंड होगा? ओसी फाइंड करने के लिए, ओसी फाइंड करने के लिए हमें पाथ बताया शजीन ने, विच इज ओबी प्लस बीसी, राइट? सो ओबी प्लस ऑफ बीसी। बेटा ओबी की वैल्यू क्या थी? दैट वाज बी, करेक्ट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ओबी? दैट वाज बी। और बीसी की वैल्यू क्या होगी? अब हमें ये फिगर आउट करना है। सो Negative A. नहीं, नेगेटिव ये नहीं होगा बच्चे, इक्वल नहीं थे। वर दीज इक्वल? दीज वर इन सर्टेन रेशियोज। ये 4 था और ये 3 था, तो आप क्या कहोगे? जरा इस बात को समझो। ओ ए एंड बी सी, राइट? सो अगर ओ ए मेरे पास ए है, वी डोंट नो इट्स corresponding वैल्यू, बट रेशियोज वी नो 4 and 3. सो अब कैन वी फाइंड दिस वैल्यू? यस और नो? कैन वी फाइंड दिस? यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। Yes. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? x will turn out to be 3a is equals to 4x and value of x is going to be 3 over 4a, जो कि बेटा हमारे पास इस वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज सपोज टू बी 3 over 4 of a, बट इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन। मुझे बीसी चाहिए था, तो कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाएगा? डायरेक्शन कैसे डिसाइड की? बेस्ड ऑन Negative. एग्जामिनर ने दिया, ठीक है। अच्छा, सो अगर मुझे बीसी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ 3 over 4a, सो दिस इज गोइंग टू बी b minus 3 over 4 of a। एम आई लैगी? अब तो इंटरनेट भी देखो चेंज करवा लिया मैंने। लैग कर रहा हूँ गाइज मैं? नो? चलो। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा माइनस ए प्लस ऑफ ओसी की वैल्यू विच वाज बी माइनस 3 over 4 ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, बट मुश्किल हो जाती है करने में, सॉल्व आसानी करो। सो अब ये डिवाइड का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? खुद से बताओ। दिस विल बी Multiplication. मल्टीप्लाइड बाय 1 over 2, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस ए प्लस, सो बेटा विल दिस बी बी over 2 and minus 3 over 8 of a. Is this part clear? क्या ये बात समझ आती है? Any difficulty? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? This will be minus a minus 3 over 8 of a plus of b over 2. b over 2 तो as it is आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? जल्दी से चेक कर लो। व्हाट्स द आंसर? minus 11 over 8 I believe. So minus 11 over 8 of a. Let me check the answer. ठीक है,
ठीक है, कोई मसला है यहाँ पे गाइस? एनी डिफिकल्टी सो फार? एनी डिफिकल्टी इन दिस वेक्टर का क्वेश्चन? नो। चलो इसके बाद मोहम्मद नबी ने क्वेश्चन 6 कहा था, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6. ओह, ट्रांसफॉर्मेशन भी गुड क्वेश्चन है इसमें. 6 ये वाला कह रहे थे? ये आईजीसीएसई का बच्चे, you'll have to wait. ये आईजीसीएसई का, ये हम लास्ट में करेंगे. गाइस एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ओ लेवल्स? नो. मोहम्मद नवीद, क्या इसके अलावा पूरा पेपर हो गया? पूरा पेपर हो गया? और बाकी सबकी क्या अपडेट? चलो फिर मैं आपको करा देता हूँ, देन इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, इट्स अप टू यू, बिकॉज़ इफ यू हैव डन द होल पेपर. अगर कुछ समझना नहीं है, ठीक है, चलो ये मैं करा देता हूँ फॉर आईजीसीएसई. गाइस दिस पार्ट इज फॉर आईजीसीएसई स्टूडेंट्स, जरा इस बात को समझिएगा. कहता है वन मॉर्निंग अ डेंटिस्ट हैज अपॉइंटमेंट्स फॉर 10 पेशेंट्स. ठीक है, 10 पेशेंट्स है आपके पास. द स्टेम एंड लीव डायग्राम शोज द वेटिंग टाइम फॉर 8 ऑफ दीज पेशेंट्स. ठीक है, फिर आपके पास ये कुछ वैल्यूज गिवन है 8 पेशेंट्स की. स्टेम एंड लीव डायग्राम है वेयर 1 and 0 represents what? That represents 10 minutes. Let me repeat again, this is for IGCSE only, IGCSE. ठीक है, वो लेवल्स वालों के लिए नहीं है ये. अच्छा, कहता है द टाइम्स फॉर 2 अदर पेशेंट्स P and Q आर नॉट शोन इन द स्टेम एंड लीव. कोई 2 और पेशेंट्स हैं जो इस पूरे डेटा में कहीं एग्जिस्ट करता होगा P and Q के नाम से. कहता है द मीन वेटिंग टाइम ऑफ ऑल 10 पेशेंट्स दैट मॉर्निंग इज 16 minutes. ठीक है, सो मीन टाइम क्या है? दैट इज 16 minutes. द रेंज ऑफ वेटिंग टाइम इज 26 minutes. बेटा रेंज क्या होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? दिस इज फॉर ओ लेवल्स. बता दो, ओ लेवल्स या ए लेवल, ओ लेवल्स आईजीसीएसई रेंज होता है क्या है? द वर्ड रेंज वी नो व्हाट रेंज इज. Maximum minus the minimum. मैक्स माइनस मिनिमम. शाबाश. अच्छा, अब कहते हैं रेंज इज 26 minutes. कैन आई से द डेटा दैट वी हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट दैट इज गोइंग टू बी 26 minutes apart? डज दैट मेक सेंस? Does that part make sense? So beta, can I have the time as 0 minutes? Probably no. ठीक है, so हमारे पास what is the least value? We'll consider 0 and 1 as the least value itself. So what is going to be the largest value? Can I say somewhere here I will have the largest value which is 26 minutes apart from 1 minute, which will give us 27 over here, जो कि ये 27 को read कर रहा होगा. Is this fair? Does this make sense? Yes or no? ठीक है, बिकॉज की क्या थी हमारे पास? 1 and 0 10 शो करता है, सो 2 and 7 वुड रिप्रेजेंट व्हाट? दिस वुड रिप्रेजेंट 27 मिनट्स. अच्छा, अब अगर हमारे पास एक वैल्यू आ गई 27, वी आर डन विद वन वैल्यू, लेट्स जस्ट से दैट इज 27. Q को कह लो 27. ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द अदर पार्ट. नाउ इट सेज के एक और डेटा क्या गिवन था मेरे पास? द मीन वेटिंग टाइम ऑफ ऑल 10 पेशेंट्स. तो बेटा मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर्स, राइट? So can I say it's going to be 1 plus 4 plus 10 plus 12 plus 19 plus 21 plus 25 plus 25 plus 25 plus of the unknown number P. एक 27 भी हमने फाइंड किया था, राइट? प्लस 27 कर लो, डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज वी हैड 10 नंबर्स और इन सब का मीन किसके बराबर था? 16. इज दिस क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? ठीक है, जल्दी से वैल्यू बता दो पी की क्या आ रही? 16 टाइम्स 10 दैट इज 160. 160 और ये वाले नंबर सारे सम कर लो, क्या आ रहा है इसका आंसर? व्हाट इज द सम फॉर ऑल दीज नंबर्स एक्सेप्ट फॉर पी? इन सारे नंबर्स का सम क्या आ रहा है? व्हाट इज द सम फॉर ऑल दीज नंबर्स? यूज योर कैलकुलेटर फटाफट. 169. बेटा नहीं, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए. आर यू श्योर? हमने नंबर सही लिखे हैं. 1 4 10. नो, नॉट डिवाइडेड बाय 10. नहीं, स्टिल. हाँ, लेट मी सी. 25 plus 25 plus 25 plus 21. You're right, maybe हमारे पास ज्यादा आ रहा है. 25 plus 25 plus 25 25. अच्छा, मैंने 3 बार 25 लिखा है, ये देखो जरा. 3 बार नहीं था, 2 बार 25 था. अब करो. नहीं, हमने गलत सम किया था, हमने एक नंबर ज्यादा लिख लिया. लेट्स काउंट. हमने एक बार ज्यादा 144. ठीक है, सो 144. सो ओवर हियर वी हैव 144 प्लस p, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 माइनस ऑफ 144.
अब बताओ क्या आंसर आ रहा है 150, so this should be 14 I guess. Let me check. This is question number 6. Question 6. हाँ सही कह रहे हो 16. 6 6 6 6 6 which is what 16. ठीक है चलो 16. ठीक है 16. अब कौन सा कह रहे हैं? We had one more question in the meantime. Zainab says question 7. Question 7 देखो. अच्छा एक ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन था. I'm not sure if you but P waits longer than Q. P waits longer than Q. कहाँ है P waits longer than Q? P waits longer than Q. हाँ तो बेटा वैल्यूज को रिवर्स कर लो. Reverse these values to satisfy the answer or examiner. The logic would be same, but the higher value would come where? It would come to P. You are correct. You are correct. ठीक है. P waits longer than Q, so you would write 27 ऊपर और 16 नीचे. चलो. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम. वी हैव अ पैरेललोग्राम and the parallelogram has same perimeter as a circle with a radius 4 सेंटीमीटर. ठीक है. सो इस पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो कैसा आएगा बच्चे? द पेरीमीटर ऑफ इट इज गोइंग टू बी सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4. सो पेरीमीटर या सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे निकलता है? जैनब जल्दी से बताओ कैसे निकलेगा? दैट इज 2 pi r. ठीक है. सो आप कहोगे 2 pi r where the radius was supposed to be 4, it is supposed to be equivalent to the perimeter of this, which is going to be 6.51 into 2 plus of चलो भाई चलो. So it's going to be 6.51 of 2 plus 2 times of x. क्या किया हमने कहा 2 बार ये x और 2 बार 6.51 को ऐड करोगे तो पेरीमीटर बनेगा. एंड आपके पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफरेंस सर्कल क्या होगा? वो 2 pi r होगा. एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 pi इज इक्वल्स टू 6.51 into 2 कर लो. व्हाट इज द आंसर? एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर लो. 13.02. ठीक है. दिस इज 13.02 plus 2x. 2x की वैल्यू क्या होगी? दैट वुड बी 13.02 माइनस ऑफ 8 पाई. और x की वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी 13.02 माइनस 8 पाई अपॉन ऑफ 2. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. So this is how you find the value of x. 4 number के लिए I think this was very easy. Now part B says अच्छा पार्ट बी सेज द फ्लोर ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ दिस पैरेललोग्राम. कुछ इस शेप के हमारे पास फॉर्म में एक फ्लोर है रूम का. एंड इट सेज इट कॉस्ट $18 पर स्क्वायर मीटर टू टाइल द फ्लोर. इट कॉस्ट व्हाट? $18 पर स्क्वायर मीटर. इसका मतलब क्या है? एवरी मीटर स्क्वायर कॉस्ट व्हाट? दैट कॉस्ट $18. ठीक है फॉर टाइलिंग. अब कहते हैं कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग ऑफ द फ्लोर. सो कैन आई से सबसे पहले मुझे क्या करना है? हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रूम का फ्लोर इन द शेप पैरेललोग्राम. क्या बात समझ आती है? ठीक है. हाँ ये भी कर ही लेते हैं ना जब स्टार्ट किया. सो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज सपोज्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ पैरेललोग्राम. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. इट्स सपोज्ड टू 1 बी over 2 sum of paired sides multiplied by height. बेटा वो ट्रेपीजियम था. पैरेललोग्राम के लिए सिंपल बेस इनटू हाइट. यहाँ पे अगर मैं बेस ये लूंगा तो हाइट क्या होगी? कैन आई कंसीडर 6.06 इज हाइट? यस और नो? No. नो. किसको लेना होगा? इट्स सपोज्ड टू बी द परपेंडिकुलर लेंथ. इसका मतलब क्या है कि अगर बेस ये है तो हाइट मेरे पास ये वाली डायमेंशन कंसीडर होगी फॉर द केस ऑफ पैरेललोग्राम. इन डिटेल अभी मेंसुरेशन में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. सो मेरे पास 6.51 है. मैं ये हाइट कैसे फाइंड करूंगा? अब डू आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर? कैन वी So अप्लाई Trigonometric ratio. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? शाबाश. ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा रेशियो अप्लाई करोगे? थीटा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कॉस लगेगा. शाबाश. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? cos of 36 is equivalent to this value height h small h hypotenuse नहीं कह रहा over 6.06 and you'll find the value of h which is what 6.06 into cos of 36. ठीक है. आंसर बताओ क्या आया? हाइट की वैल्यू क्या आई? what is the value of height? That is what's the value of height?
Someone guys, जल्दी से 4.90. 4.90. Yes. ठीक है, अगर ये 4.90 है बच्चे, सो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो किस किस को, बेस और हाइट को, विच इज 6.51 इंटू 4.90, और ये आपके पास क्या आएगा आंसर, इन सर्टेन मीटर स्क्वायर्स में आएगा, ठीक है। बट एवरी मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 6.51 इंटू 4.90, दिस गिव्स अस 31.89. So this gives us what, 31.89, and we multiplied with every meter square, which is supposed to be 18 into 18 कर लो. So this gives us 574. ठीक है, 574. ठीक है, any difficulty so far? Any difficulty? No, No. sir. चलो, इसके बाद गाइस और किसने किसने पेपर सॉल्व कर दिया, एनी डिफिकल्टी फ्रॉम दिस होल पेपर? कोई और क्वेश्चन जो मुश्किल लगा हो पहले वो कर लें। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, एवरी मीटर स्क्वायर। ये आंसर कैसा आया, ये नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर है ना उसका, फ्लोर का। जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, दिस इज नाइस, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम श्योर यू कैन डू फर्स्ट टू पार्ट्स इजीली। मुझे बता कि बीसी कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट बीसी? दिस इज द लेंथ दैट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। कौन सा रूल लगेगा, विच रूल विल यू अप्लाई टू फाइंड बीसी? Cos. कॉस रूल लगेगा, शाबाश बेटा। कोसाइन रूल जब लगाओगे, सो दिस वुड बिकम व्हाट, दिस वुड बी बीसी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 112 स्क्वायर प्लस ऑफ 300 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 112 टाइम्स ऑफ 300 टाइम्स ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 140। सो आपके पास बीसी की वैल्यू आ जाएगी बाय टेकिंग द रूट ऑन दिस होल थिंग। सो आप रूट ऑफ ऑल दिस थिंग कर लो, आपके पास बीसी का आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स राइट इट डाउन। सो फॉर 15 इट्स सपोज्ड टू बी 392.4, ठीक है, 392.4। मैं फर्स्ट टू पार्ट जल्दी से कर रहा हूं बिकॉज़ वी हैव डन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स रिसेंटली। हम डायरेक्टली लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब एंगल डीबीसी मुझे पता कैसे निकलेगा, वी नो दिस टू बी 392.4। हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द एंगल डीबीसी व्हिच इज दिस एंगल थीटा? कैसे निकालोगे? Angle. Sine rule. साइन रूल। कौन कौन से पेयर पता है बेटा? एक ये पेयर पता है, दिस इज द अदर इनकम्प्लीट पेयर। सो आउट ऑफ दीस फोर वैल्यूज यू नो वन वैल्यू, सो यू गोइंग टू अप्लाई साइन रूल। थीटा इज अननोन, तो थीटा को ऊपर रख लो। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा ओवर 112 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 140, plug in the values over साइन ऑफ 140 अपॉन ऑफ 392.4। थीटा कैसे आएगा? You would multiply that values on the other side. So sine of theta is equals to 112 into sine of 140 over 392.4, and theta is going to be sine inverse of the whole thing. क्या आंसर आया जल्दी से बताओ? What answer will you get for this? Make sure your calculator is in degree mode. क्या आंसर आएगा इसका? 10.5, एंगल 10.5 है, 10.57, चलो ठीक है, 10.57, 10.57। अब कहता है द टोटल एरिया, गौर से देखिएगा, ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं, दिस इज 10.57। नाउ वी हैव द इंटरेस्टिंग पार्ट। कहता है द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड ABCD इज 35900 मीटर स्क्वायर। बेटा ये पूरी फील्ड थी, ये पूरा शेप, ठीक है, से पूरा जो शेप है, इस पूरे शेप का एरिया क्या है बच्चों? इस पूरे शेप का एरिया इज सपोज्ड टू बी 35900 मीटर स्क्वायर। वर्क आउट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम D to AB। सो व्हाट इज D to AB शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कैसे बनेगा ये? हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ D to AB द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कैसे बनाओगे? 90 degree. 90 90 degree. degree starting from D up until the line AB, but at what, 90 degrees. So this is the length that you're supposed to find for the case where area is given। अब पूरे शेप का एरिया गिवन है, तो कैसे निकालोगे इसको? जरा सोचो, कैसे निकालोगे? What are you going to do? जल्दी से बताओ, आप लोग कह रहे थे पेपर कर लिया पूरा, आसान है। How are you going to find the shortest distance? एरिया फॉर्मूला पाइथागोरस से। बेटा पाइथागोरस से लेंथ ही अननोन है ना अभी, ये वाली भी आपको थोड़ी पता। दिस होल थिंग वाज सपोज्ड टू बी 180, पूरी चीज 180 थी। यू डोंट नो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इंडिविजुअली।
गुड जॉब, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड जॉब नवीद, मोहम्मद नवीद एंड शजीन। अच्छा गाइस, इस बात को समझो कि अगर मैं किसी तरीके से, नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन? क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों? कैन आई फाइंड इट? कौन से फॉर्मूला से Yes, sir. निकलेगा एरिया? कौन से फॉर्मूला से Half निकालोगे? into AB to sin C. गुड जॉब, हाफ इनटू ए बी साइन सी। तो अगर मेरे पास इस रीजन का एरिया आ जाए, लेट्स कॉल इट A1 कह लेते हैं, एंड आई हैव द टोटल एरिया, सो मेरे पास इस रीजन का एरिया कैसे आएगा? हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस? कैन आई से सबट्रैक्ट द टू एरियाज टुगेदर? यस और नो? Yes, Yes or no? sir. Now think about this. How am I going to find the area for this? अगर मुझे एरिया फाइंड करना होता है इस रीजन का, is in the formula for right angle triangles, half into base into height, with the two lengths I know are perpendicular to each other. Yes or no? Yes or no? So can I apply half into base into height on this triangle and equate it with the area that I find? Yes or no? जल्दी से बताओ. Do you get this part? ठीक है, चलो। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस केस। एरिया वन हमारे पास कैसे आएगा? दैट इज गोइंग टू बी A1 इज इक्वल्स टू half into AB, which is what? Which is 112 and 300. So it's going to be 112 and 300 times of sine angle between these two lengths, which is going to be 140 for this case. Area बताओ क्या आ रहा है? What is the area? A1 turns out to be, what is this area? This is 0.5, 10798. So 10798.8, और मेरे पास टोटल एरिया क्या था? टोटल एरिया था मेरे पास 35900. सो 35900. सो व्हाट्स द रिमेनिंग एरिया फॉर दैट शेप? इट्स गोइंग टू बी 35900 minus 10798.8. जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? रिमेनिंग एरिया क्या आएगा इस रीजन का? दिस इज द एरिया दैट वी गॉट. दिस इज 25101. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 25101.17, which is going to be equivalent to half into base into height, where my base is going to be 180 and the height is unknown. ठीक है, so base 180 और height unknown ले लो. So this is 180 into height, multiply this and divide by 180. पता है क्या आ रही है? Multiply it with 2, this value multiply with 2 and divide it by 180. क्या आएगा आंसर? 278.9. ठीक है, 278.9. So this should be the answer. Let me check. 15. ठीक है, चलो, करेक्ट है. Any other questions from this paper? Let me see. ग्राफ ऑफ फंक्शंस कर लेते हैं कम एटलीस्ट. लेट्स ट्राई ग्राफ ऑफ फंक्शंस कर लें. अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. चलो, सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट सेज द टेबल शोज, सर्कल वाले भी करा देते हैं, इसके बाद सर्कल करते हैं. डन. The table shows some values y is equals to x cube minus 2x plus 3 when appropriate the values of y are given correct to two decimal places. ठीक है, हमारे पास ये कुछ values given है, इनकी corresponding y values निकालनी. कहता है complete the table. ठीक है, अच्छा, अब कहता है इस टेबल को complete करने के लिए हमें y की वैल्यूज चाहिए होंगी. सो y की वैल्यूज कैसे आएंगी? वेरी इजी, प्लग इन दीज वैल्यूज ऑफ x जो आपको गिवन है एंड टेल मी द y की वैल्यूज क्या आ रही हैं. जल्दी से एक बार प्लग इन कर लो. माइनस ऑफ 1.5 का क्यूब, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1.5 एंड प्लस 3. व्हाट्स द आंसर? जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहे हैं. दो वैल्यूज 2.6, दूसरी भी बता दो व्हाट इज द अदर वैल्यू. कैलकुलेट इरेज नहीं करना, इसी में से इस पार्ट को सिर्फ इरेज कर लो, दोबारा से प्लग इन करने की जरूरत नहीं. कैलकुलेटर में इरेज करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. पूरा दोबारा से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट इरेज दैट पार्ट, नेगेटिव का साइन फ्रॉम द ब्रैकेट. क्या आ रहा है बताओ फटाफट. .37. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3. लेट्स प्लॉट इट. सो -2 पर वी आर सपोज टू गेट -1. सो नहीं, क्या था, 2 पर -2 पर -1. ठीक है, सो ऑन -2 वी शुड बी गेटिंग -1 ओवर हियर. ठीक है,
-2 per -1, make sure you plot it with cross, -1.5 for 2.6. So beta -1.5 is going to be somewhere here. -1.5 पर क्या करना है आपने plot 2.6. So 2.6 is going to be, if this is 2, नहीं बल्कि ये रहा -1. Wait, -1 is over here. This is -1 and 2.6 is going to be somewhere at 6 units of per. So it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 over here. ठीक है, this is the coordinate. ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? We have -1 and 4. So for -1, we are supposed to get 4. It should be here. And then what else do we have? ठीक है, मैं करता हूँ. And then we have -0.5 and 3.88, -0.5 and 3.88, 3.9. So somewhere here 3.88 in the middle. And then we have what? 0 and 3. So 0 and 3 will come here. And then we are supposed to do 0.5 and 2.13, 0.5 and 2.13 somewhere here. And then we have 1 and 2. Beta 1 and 2 यहाँ पे plot होगा. Here we have what? We have 1.5 and 3.37, 1.5 and 3.37. So 1, 2, 3. So 3.37 would be here. And then we have 2 and 7. Okay, last value is 2 and 7. This is the graph of how it should basically look. ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे फटाफट इनको. ठीक है, लेट्स ज्वाइन दीज वैल्यूज. सो हमारे पास ये हो जाएगा, करते हैं इस क्वेश्चन के बाद. सो वी ज्वाइन दिस ग्राफ. आई विल गिव इट अ ट्राई. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट शुड लुक. Something like it's difficult. No. चलो, something like this. ठीक है, let's see what it has to say. अच्छा, we're done with the graph. इसके बाद कहता है by drawing a suitable straight line on the graph, solve the equation x cube minus 2x 2.5x plus 1. x cube minus 2.5x plus 1. बताओ कैसे होगा ये? What are we supposed to do? Subtract the two equations. So can I say इन दोनों को subtract करेंगे? Do we have to do anything? No. यहाँ पे left side पे क्या होगा? Y is equal to what is -2 minus of 2.5. क्या होगा ये? Can I say -2 plus 2.5? It would give us what? Half x or 0.5x. Is this part clear? Yes or no? जल्दी से बताओ. Is this part Yes, clear? sir. And last में क्या बचेगा बेटा? 3 minus of 1. Will that give me 2? So what is the equation that I'm supposed to draw? I'm supposed to draw y is equals to half x plus of 2. ठीक है, अब मुझे बताओ कि पास कहाँ से होगी? Do we know since this is a straight line, so this has to pass from 2 at this point? Yes. And इसका gradient कैसा होगा? Gradient होगा half, right? So मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए दूसरा कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए. How will I plot any other? Assume x values. Assume x values. ठीक है, so मेरे पास थी y is equals to half x plus 2. Assume any x value. Let's just say we are assuming 2. बेटा अगर 2 assume करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 2 और 2 cancel and we'll be left with 1. Y is equals to 1 plus 2. That gives me 3. So on 2 I'm supposed to draw at 3, right? This is what we have to do. ठीक है, so at 3 somewhere here at on 2 I'm supposed to plot at 3. So this is how the line should look. And what will I do? मैं ruler लूंगा, इन दोनों points को join करूंगा and I'll basically draw a straight line. I hope this part is clear, guys. कर सकते हैं? Yes or no?
Yes, अब हमें sir. क्या करने, अगर हमने सॉल्यूशंस बताने तो 3 जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, कर रहे 3 जगह, बिल्कुल कर रहे हैं। सो आपने इन तीनों की क्या वैल्यूज बतानी है, सपोज टू टेल द एक्स वैल्यूज wherever these intersect. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो यू टेल these values. कर लेंगे, जल्दी से बताओ, will you be able to find this? So this is what you're supposed to do for a graph of function. चलो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री देखो, फिर मैं जरा अब्दुल्ला आपके क्वेश्चन करा दूं. This was the trigonometry. Shazeen, you want to take a screenshot? तो ले लो फटाफट. And जरा इस पार्ट को समझो कि क्या कहता है. Zimul, the question says that we are supposed to find this shortest distance over here. हमें shortest distance find करना था, given that this area is known. ठीक है, this whole area is known. Now because हमें shortest distance पता है, right angle triangle पर है, so can I say this base into height would half into base into height would give me the area for this region? Yes or no? Yes. यस. सो अगर मुझे टोटल रीजन के एरिया पता है, अगर मैं उसमें से ये ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूं, कैन आई इक्वेट द टू थिंग्स नाउ, द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल एंड देन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट? यस और नो? कंफ्यूज्ड? Yes. अच्छा चलो देखो, I had the area of this whole region which was 39500 or whatever that was. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रीजन के एरिया पहले बताओ क्या फाइंड कर सकता हूँ? Yes. Half into AB sin C. Can I remove it from the total area 39500 so that I get the area of this region? Yes. Yes, so I got that value to be 25,000 after subtracting the two areas. अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस रीजन के एरिया कैसे निकलेगा, given that this is the shortest distance and this is what you're supposed to find. Shouldn't it be half into, consider this triangle to be a triangle जहाँ पे base ये होगा और इसके perpendicular height consider होता है, yes or no, in order to find the area? Okay. So beta, if this is my base, what is going to be the height for this case? Do I consider this to be my height? And if I do half into base into height, that would give me the area for this region, yes or no? Yes. So beta, do I have the area key value for this region? Yes, I do, which is what? Which is 25,000. So I did half into base. I consider this to be base and this to be height, which the two lengths are perpendicular to each other. And मेरे पास ये shortest distance जो मैंने height assume की थी वो value आ जाएगी. Is this clear? Yes, got it. Thank you. Clear है? हाँ. चलो, she's on call अभी भी, हालत देखो. Question number. Sir, I said clear. Can't you hear me? Sorry. I said clear. Can't you Yeah, hear me? but then I heard Assalamu alaikum ji as well. No. So, I mean, I heard it very loud and clear. So, anyways, let's do what? Let's do circle properties. What is circle properties? Circle properties. कहाँ गए circle properties? Right here we have circle properties. Circle properties क्या कहता है? Sir, but ABD तो BCD का half नहीं होगा. Where is ABD and BCD? क्यों? क्यों half होगा? Explain it to me. Why will that be half? क्यों half होगा? तो राइट एंगल नहीं तो हाफ क्यों होना चाहिए? आई डोंट गेट व्हाट यू ट्राइंग टू से. बेटा, दिस इज अ सेपरेट ट्राइंगल जिसके आपने हाफ इनटू ए बी. लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दिस. ठीक है, पूरा एक डिफरेंट ट्राइंगल है. ठीक है, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्राइंगल एंड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्राइंगल. तो बेटा, इस पार्ट का एरिया आप फाइंड करोगे हाफ ए बी साइन सी से. ठीक है, और इस पार्ट के एरिया फाइंड करोगे बिकॉज शॉर्टेज डिस्टेंस का ऑलरेडी आपको एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट दे दिया. सो यू विल डू इट विथ इट. हाँ तो बेटा किया है ना, हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर दिस रीजन किया हुआ है ना. क्लियर? चलो, सर्कल प्रॉपर्टीज. सर्कल प्रॉपर्टीज में हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. मुझे अब्दुल आज बताओ वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकलेगी, कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ एक्स? जल्दी से बताओ. इज ही हियर विद अस?
ठीक है 52 into 2 52 into 2 ठीक है दैट इज 104 ठीक है x इज गोइंग टू व्हाट दैट इज 104 रीजन क्या लिखोगे रीजन लिखेंगे एंगल एट द सेंटर ठीक है इज डबल ठीक है y कैसे आएगा जल्दी से बताओ हाउ विल यू गेट y if this is 104 can I find these two angles yes or no ये दो एंगल फाइंड कर सकते हैं हम 180 minus Yes, sir. 104 that gives us what 76 upon 2 which is what g क्या आई वैल्यू जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आएगी 38 तो बेटा दिस इज 38 ये वैल्यू कैसे निकलेगी y कैन आई से दिस इज सपोज टू बी इक्विवेलेंट टू व्हाट कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ऑल्टरनेट 65. शाबाश बेटा ये ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी वेयर दिस होल थिंग इज 65 माइनस 38 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस इज गोइंग टू व्हाट 65 minus of 38 the answer is what 27 is this clear 27 कह रहे थे ना इसका आंसर यही होगा 40 yes 27 ठीक है चलो what other question can we try for this paper ये वाला ट्राई किया था was this nice sir please the first question चलो first करता 1 and n so question 1 of this paper says write 60 grams and 3 kilograms in the form 1 into n guys keep in mind whenever you're doing ratios these should be in the same unit ठीक है किसमें होना चाहिए सेम यूनिट में आना चाहिए जब भी आप 1 and n के फॉर्म में करते हो तो बेटा सेम यूनिट के फॉर्म में ये भी ग्राम है इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 60 रेशियो व्हाट इज 3 into 1000 so 3 into 1000 एक ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 60 over 3000 grams ये रेशियो हो जाएगा नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेटर अलाउड है ठीक है सो जस्ट डिवाइड 3000 over 15 यू विल गेट द आंसर दैट इज इट जल्दी से कर लो या 1 into n के फॉर्म में कर लो जस्ट डू 3000 डिवाइडेड बाय वो आंसर आ जाएगा दिस इज गोइंग टू 50 फॉर दिस केस इजी नाउ यू सेड व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 क्या है बेटा 4 इज इजी देखो it says Pedro makes cards बनाते हैं he makes cards at a rate of 9 cards every 20 minutes 20 minutes में 9 cards तो मुझे बताओ एक घंटे में कितने 20 minutes के इंटरवल होंगे how many intervals are you going to have for 30 minutes मतलब 20 minutes Four. नहीं 20 minutes के 20 20 40 40 40 3. that is 3 so beta can I say he's going to make 9 cards thrice in an hour so that means 9 into 3 for every hour and then how many hours 8 hours this is the number of cards he makes in 8 hours is this clear Yes, sir. क्या आंसर आया बताओ this is 216 फिर कहते हैं each card cost 12 cents to make Pedro sells each card for 50 cents work out his percentage profit बेटा profit कैसे आता है profit amount ठीक है profit over the actual cost or starting cost initial cost वो कह लो multiplied by what 100 so बेटा आपके पास profit कितने का था कहने से it was 50 minus 12 over the cost of it was 12 into 100 and you can get the answer जल्दी से बताओ क्या आंसर आया what's the answer for this क्या आंसर आएगा what is the answer that is 316.67 316.67 ठीक है चलो जी इसके बाद हमारे पास और क्या है लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ट्रांसफॉर्मेशन कराऊं या फिर ये वाला भी नाइस था कौन सा करना है ट्रांसफॉर्मेशन और दिस स्टैटिस्टिक्स बोथ चलो बोथ सुन लिया हमने आपकी चलो दोनों चलो कॉल खत्म हो गई बच्चे स्टैटिस्टिक्स दोनों करा देता हूँ चलो जी व्हाट आर यू सेइंग I was never on a call. You're never on a call. अच्छा चलो. So what does this mean? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? Transformation. चलो. अच्छा कहता है on the diagram draw the image of shape A. Draw the image of shape A after a translation by the vector 1 and -7. बेटा इसको आपने ट्रांसलेट करना है 1 and -7 तो इसका मतलब क्या है 1 का मतलब क्या विल इट गो राइट लेफ्ट अप और डाउन कहाँ जाएगा Right. Right. और -7 का मतलब क्या कहाँ जाएगा ये Down. Neutral.
ठीक है, so let's do it. So let's do 1 unit to the right and 7 down. So हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7. so बेटा ये 7 यहाँ पे आएगा, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा यहाँ पे. This would be drawn like this. Or you can also do what, you can also move all the coordinates, but that would be correct as well. या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक corresponding line draw कर लें, because it's copy paste you can draw the other part. So both methods are correct. So this is how you're going to draw ट्रांसलेशन ऑफ दिस. ठीक है, अच्छा फिर अब जरा देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है. कहता है शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1. तो बेटा y इज इक्वल टू x प्लस 1 कैसे बनेगा बच्चे, कैसे बनेगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, कैसे बनेगी Y y. is equal to X and plus 1 to the upwards. हाँ तो बेटा यहाँ पे बनेगा, और x प्लस 1 का मतलब क्या, ग्रेडियंट भी 1 है, तो शायद ये कुछ इस तरीके से बनेगा. बट इफ यू कंफ्यूज्ड, do just assume values x plus 1, assume x to be any number. Let's assume x to be 2. तो बेटा y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर आएगा 3. So that means on 2 you're supposed to draw y as 3. So this is how your line would look, something like this. ठीक है, something like this. अब आपने करना है क्या, now you're supposed to reflect it with this line. और किसको रिफ्लेक्ट करना है, शेप ए को ही करना है. ठीक है, शेप ए को ही रिफ्लेक्ट करना है. हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट दिस पार्ट. ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन आपको जरा सा तंग करेगी. सो आपने क्या करना है, नाउ अंडरस्टैंड दिस. नाउ हाउ मेनी यूनिट्स अवे इज दिस पॉइंट. अब बिकॉज इसमें आप शॉर्टकट्स भी नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज नॉट एनी ऑफ द 4 केसेस दैट वी हैव लर्नड. सो यू विल हैव टू अप्लाई थोड़ा सा कॉमन सेंस. अब आपने चेक करना है ये लाइन से इधर इन एक्स और वाई एक्सिस कितने यूनिट्स दूर है बच्चे. दिस इज 1 2 3 4 5 6. So now I'm going to draw its corresponding point 6 units over here. So 1 2 3 4 5 6 at this point. ठीक है, so यहाँ पे कहीं आपके पास बनेगा. Is this part clear? Is this part clear guys? ठीक है, अब इसके साथ चेक करो ये यूनिट कितने दूर है, 1 2 3 4 5 6 और 6 as well. So 1 2 3 4 5 6. This is where you're going to draw this. And then let's try it for this part. कितने यूनिट्स दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it's going to come over here, and then we're going to do it for this part. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is how your shape would look after reflection. Is this clear? जल्दी से बताओ. Is this part clear? Any difficulty? No. So this is going to be A का दूसरा part. अब कहता है describe fully the single transformation that maps A onto B. A से हम B पे जा रहे हैं. कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है ये बच्चों? What type of transformation is this? What do you think? Is this enlargement? क्या ये enlargement है? No. Is this translation? No. Is this reflection? No. This is not reflection. So hence it's a rotation. ठीक है, अच्छा अब रोटेशन में भी थोड़ा सा ट्रिकी शेप दे दी एग्जामिनर में. आई गेट इट, बट कैसे करोगे, ट्रायल एंड एरर. और you can also do what, you can also do perpendicular bisectors. Now think about this. अगर मैं ये और ये corresponding line ले लूं, now कौन से एंगल पे आप A से B जा रहे हो ना, you're going from A to B. या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा पूरा घूम के. सो मुझे बताओ which is appropriate. Do we answer in terms of 90 or do we answer it in terms of 270? 90. 90. So this is going to be what, rotation. ठीक है, with what, 90 degree एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अच्छा क्योंकि आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इट्स एंटी क्लॉकवाइज. गुड जॉब जिमल विद दैट पार्ट. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, वी आर आल्सो सपोज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से. नाउ सिंस दिस शेप इज गोइंग इन दिस वे, ट्रायल एंड एरर कर लोगे या फिर आप कर लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से. सो लेट मी थिंक कि आपके पास कैसे बनेगा शेप. I think somewhere here you should be getting it. ठीक है, so it should be somewhere at -2 and 6, I believe. Yes, I think it should be somewhere around -2 and 6.
So आपके पास center of rotation क्या होगा? Center of rotation would be at -2 and 6. You can do multiple ways. Trial and error भी कर सकते हो and perpendicular bisector भी कर सकते हो. So give it a try using that method. Now let's do one last question, which is of statistics, and then we'll wrap up the class today. Now it says show that there are 10 coconuts in category D. कैसे show करोगे? कैसे show करोगे बताओ? जल्दी से बताओ. How will you show it? How will you show this part? फटाफट. Waiting guys. हमारे पास कुछ डेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की फॉर्म में वेयर वी आर सपोज टू शो 10 कोकोनट्स. 10 कोकोनट्स का मतलब क्या? वी आर सपोज टू शो फ्रीक्वेंसी. कैसे प्रूव करते थे फ्रीक्वेंसी? कल ऐसे सिमिलर क्वेश्चन किया एक. हाउ डू वी रिलेट फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इन एवरीथिंग? कम ऑन. ठीक है, शाबाश. तो बेटा हमारे पास मेथड क्या था? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी is equals to frequency over class width, where you're supposed to show 10 coconuts. That means you're supposed to find frequency. That means class width and frequency density are supposed to be multiplied for the case of D. तो मुझे बताओ what is the class width over here? Class width क्या है? 1.6 and 1.35. So ये आपके पास हो जाएगी class width क्या हो जाएगी? That is 1.6 minus of 1.35, and these are supposed to be multiplied with the frequency density. और frequency density क्या है? Which is this over here, that represents 40. So multiplied with 40. देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ. What's the answer? What is the answer? This is 0.25. So 0.25 is equivalent to 1 over 4. So the answer is 10. ठीक है, so answer turns out to be 10. कहता है 2 coconuts from the category, from those category C and D, category D are chosen at random. Find the probability. कहाँ से choose कर रहे हो आप? 2 coconuts choose कर रहे हो कैटेगरी C से और D से. कहता है find the probability that both are from category D. ठीक है, आपने 2 coconuts select किए from category C and D, and you have to show that you have to find the probability that both are from D. इसका मतलब क्या है बेटा? पहला भी आपके पास D से आएगा, दूसरा भी आपके पास कोकोनट कैटेगरी D से आएगा. ठीक है, सो आपने करना है D इंटू डी, D इंटू डी. ठीक है, बोथ आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम कैटेगरी डी, सो दैट मींस D इंटू डी. एंड D की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? D आपको पता था 10 था, एंड टोटल क्या है बेटा? टोटल वर सिलेक्टेड फ्रॉम C एंड D. सो आपके पास इन दोनों में से सिलेक्ट हुए टोटल. ठीक है, सो वी नो कि इसके तो 10 कोकोनट्स थे, बट वी डू नॉट नो द कोकोनट्स फॉर दिस. इसके कोकोनट्स कैसे निकालोगे? द हाइट ऑफ इट विच इज व्हाट? 170. ठीक है, so 170 multiplied with the class width, which is going to be 0.1 unit. So what is 170 into 0.1? That gives you 17 coconuts. So beta total coconuts कितने थे आपके पास? Those were 10 plus of 17, 27 coconuts in total. So D क्या थे आपके पास? D were 10 coconuts. So आपने क्या करना है? D and D का means it's going to be 10 over 27, and ये without replacement का case होगा. So this is going to be 9 over 26, I believe. ठीक, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से चेक करो. What's the answer for this part? Check out what the answer is. 5 over 39. So here it is. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? 5 over 39. फिर लास्ट पार्ट कहते हैं कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास ऑफ द कोकोनट्स. इसमें बड़ी ख्वारी लगेगी. चलो, मीन मास कैसे निकलता है बेटा? इट्स समेशन एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ. बिकॉज आपके पास डेटा कैसा था? कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा है. कैसे पता? जरा इस बात को समझो. बेटा हमारे पास क्या हमने ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड की हैं? बिल्कुल, हमने ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी फाइंड की 17, और ये हमें इसकी भी फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी. सो इसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं पहले. वो क्या होगी? 0.9 to 1.1. दैट मीन 0.2 इंटू ये क्या है? 30. सो व्हाट इज 0.2 इंटू 30 गाइस? व्हाट इज 0.2 इंटू 30? 6. ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज 6. इसकी कर लो. दिस इज व्हाट? दिस इज 100 इंटू 1.15. So this is 0.15 into 100. So this is 15. ठीक है, 15.
So what is the count of this? The frequency of this is 6, 5, 7 and 10. आपने summation fx over summation of f करना है, where you know the values of frequencies but you do not know the x values which are going to be the middle values of this. ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा individually 6 into the middle value of it, which is 6 times of 1, 6 times of 1 the middle value of this. ठीक है, प्लस जो हम उसमें ही करते हैं बट द एग्जामिनर ने दूसरे तरीके से सवाल दिया, 100 टाइम्स नहीं 5 क्या था, 15 था ना, सॉरी व्हाट वाज दिस वाज 15. सो 15 टाइम्स ऑफ, यस 15 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, चलो दिस इज, फाइंड करो कैलकुलेटर से, 1.1 प्लस 1.25 अपॉन 2, 1.1 प्लस 1.25 अपॉन 2, is that 1 point, 1.175. so this is 1.175 into 15. ठीक है, प्लस ऑफ इसका 1.25 और 1 पॉइंट इसका क्या होगा, दैट इज 1.3 टाइम्स ऑफ 17. ठीक है, एंड अगेन समेशन ऑफ एफएक्स व्हिच इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स ऑफ, इसके मिडिल वैल्यू बता दो, 1.35 एंड 1.6 अपॉन 2, व्हाट इज दैट, 1.35 and 1.6 upon 2, that is क्या है, what is 1.35 plus 1.6 upon 2 guys, 1.35 प्लस ऑफ 1.6 डिवाइड बाय 2 टू फाइंड द मिडिल वैल्यू, जो कि कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, 1.475. 1.475 multiplied by 10. और बेटा टोटल क्या था, the total frequency was what, sum of f, that was 6, 15, 17 and 10. ऐड करके डिवाइड कर लो. ठीक है, सो ये ख्वारी करवाई एग्जामिनर ने फॉर मीन मास. टेल मी व्हाट द आंसर इज फॉर दिस पार्ट, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है. और एक्चुअली वेट 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 x 52.07, ठीक है, बल्कि ठीक है 52.07. लेट्स सी दिस इज विच पार्ट, दिस इज 16 part C. No, we are not doing it correctly. No, we are making some mistake. मिड पॉइंट्स निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ठीक है. सम ऑफ एफ एम हमने फाइंड क्या करना था, मीन मास. व्हाट वाज द मास वैल्यूज, एम एक्स, no, we are making some mistake in this part. Let's see. Summation of fx divided by summation of, this is correct, this was f, the values of this were this. Frequency density 17, 1.3. Let me check. So 6 plus 1.175 into 15 plus 1.3 into 17 plus of 1.475 into 10, and all of this was supposed to be divided by 6 plus 15 plus 17 plus 10. सही तो आ रहा है गाइस. 1 point, how are you getting 52? 52 नहीं आना चाहिए आपका, 52 कैसे आ रहा है, 1.26 आ रहा है इससे आंसर, which is correct. What did you do calculator में, 1.26, the answer is correct. देखो 6 times of 1 plus of 1.175 into 15, सबका आंसर कैसे डिफरेंट आ रहा है, 1.3 into 17, 1.175 into 10. ठीक है, और नीचे सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उसके साथ डिवाइड होगा. क्या कर रहे हो गलती कैलकुलेटर में, हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे आया 52 जरा समझाओ. बाकी सबका कैसे डिफरेंट आ रहा है,
कैलकुलेटर यूज सही से करो गाइस. 6 into 1 plus 1.175 into 15 plus 1.3 into 17 plus of 1.175 into 10 और नीचे ये सारे ऐड हो रहे हैं डिवाइड में. हाउ आर यू गेटिंग अ डिफरेंट आंसर? एवरीबडी इज गेटिंग 52. एक का आंसर कॉपी करके बाकी सब ने छापा है. दैट इज द ओनली पॉसिबल रीजन दैट आई कैन थिंक. Is this clear? Is this clear, guys? Is this part clear? Yes or no? अच्छा, one got 52. So one got 52. ठीक है. I'm tripping probably. चलो ठीक है, it's fine. So 1.26 is the answer. Any other confusion from this paper, or should we wrap it up? आज के लिए काफी है. ठीक है. चलो. So just keep in mind you have your mock examination tomorrow and